तो गाइस एज यू कैन सी ये अभी बज रहा है रात के 9 बज रहा है और लाइक द टाइम इज़ 21 Feb 2026। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट हैपेंड यस्टरडे बेसिकली। तो मैं बता रही हूँ द होल सिनेरियो विच इज़ हैपेंड यस्टरडे। सो यस्टरडे लाइक आई वॉज लाइक वॉचिंग द सीरीज ऑफ, मैं बस देख रही थी द सीरीज ऑफ मैराथन बाय Vedantu. Okay, so I was watching the series of Vedantu, and like the thing which happened is like it was like 19 hours. It was 19 hours. It was 19 hours marathon, and I was watching the series of Vedantu, and which have started at 11 o'clock. सुबह के 11 o'clock स्टार्ट हुआ था एंड मैं देख रही थी एंड देखते देखते एक लेक्चर कंप्लीट करते करते बज गया 3। फिर कंप्लीट करते करते रात में हो गया, मतलब मैंने सोचा कि ओके भाई एक लेक्चर कंप्लीट करके 3 बज गया और इट वॉज टोटल 10 आवर्स। तो मेरे को लगा कैलकुलेशन करके कि ओके इफ़ इट इज़ ऑल्सो 3 o'clock देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 o'clock 1 बजे तक आई कैन कम्प्लीट इजिली। सो दिस वॉज माई कैलकुलेशन, बट द थिंग इज़ दैट मैं बीच बीच में मैं सीरीज़ देख रही थी। मतलब जस्ट सोचो एक दिन बाकी थी फिर भी आई वॉज लाइक नॉट कंसनट्रेटिंग ऑन माई थिंग। ऑब्वियसली कैसे होगा, क्योंकि पूरा साल तो मैं पढ़ती नहीं हूँ एंड द थिंग इज़ दैट एक दिन पढ़ती हूँ, कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा भाई। उम्मीद थोड़ी ना मेरे पास उतने टैलेंट है कि मैं 14 घंटा 10 घंटा एक दिन बैठ के पढ़ूँ, नहीं है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली नहीं हो पा रहा था। बट द थिंग इज़ दैट क्या हुआ, तो मैं ऐसे ही करते करते हो गया और फिर मैंने 12 बजा तो मैंने लगा कि थोड़ा सा सो लेती हूँ बिकॉज आई वॉज लाइक हैविंग लाइक बहुत स्लीपी लग रहा था ना। ऑब्वियसली आई नीड सम ब्रेक ऑफ माई हेड, इट वॉज टेरिबल। सो मैं सो के उठा, मैंने अलार्म लगाया था 12 बजे, इट वॉज लाइक 12 o'clock, मैंने अलार्म लगाया था 12 बजे का एंड मैंने सो के उठा एट 1 o'clock। 1 o'clock legit मैंने सो के उठा एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि आई वाज लाइक स्टडिंग एंड स्टडिंग करते करते लाइक इट वाज लाइक आई कंप्लीट द लेक्चर एट 4 o'clock 4:30 o'clock total, but not fully। 3 chapters was left, like मैं बता रही हूँ वेब ऑप्टिक्स then that chapter nucleus portion and semiconductor. I don't know how I have did it, I just done the questions, I have left the theory portion everything. Even I have not recall the principles, I forgot each and everything. So obviously within 1 or 2 hours my exam was at 10 o'clock, and the thing is that at 10 o'clock my exam was, and I need to just get ready at 7 o'clock obviously, then how I will reach. It was my first day, so I have no fucking idea, and my center was at BD. So the thing is that I try to complete by 4. Okay, I try to complete by 4, but हुआ नहीं, it completed at 4:30, वो भी ऊपर से। I didn't complete it fully or completely, and think what has happened after that is क्या ही बोलूँ, मैंने सोचा कि it's fine, I just from after onwards I will just read the derivations and then formulas and then done। हुआ ये कि I started to do the derivations from 5 o'clock। Okay, I was like watching this lecture, that lecture, and I started to do the derivation from 5:30 or 5 o'clock like that। And after that what happened कि I was like so new to the derivation, that derivation it took me like almost 6:30 to complete, and still I was like the video was of only 11 hours, so not 11 hours, sorry, 11 minutes, and I was at 7 minutes
more 4 to 6 derivations was left to complete it. So obviously I need to practice and everything. So I was just skipping the basic not I was doing each and every derivation line by line, and it was like 7:30, still 5 to 6 derivation left, and I was like, what the fuck should I do? And then my mom was calling, knocking the door key, just open it, we need to just go to school by 8:30. then what to do? तो मैंने सोचा कि okay, let me just take a shower, and after that I could easily do it by 8:30. I can just complete it. So I just take a shower by 8, and I try to do derivation by 8:10. But obviously, how can I do it? 8:30 was my time to leave. नहीं हो पाया derivation. I was like watching the derivation, but the thing is that उस दिन मेरे पापा बोला कि ओके आई विल जस्ट गो बाई बाइक. डू हैव टू गो बाई बाइक बिकॉज कार नहीं ले जा पाएंगे, बिकॉज इफ़ वी टेक द कार we can't just park it there because it is such a jam place and our car may be in danger or something. So we're like okay, that's fine. मतलब कुछ फाइन नहीं था, ये बस ऐसे ही बोल दिया. और फिर एट दैट टाइम मेरी मम्मी ने बोला कि शी ऑल्सो वॉन्ट टू गो बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट एग्जाम, सो शी ऑल्सो वॉन्ट टू कम विद अस. भाई ये सुन के मेरा फट गया था, बिकॉज अगर हम 3 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे हैं देन हाउ इट विल बी पॉसिबल दैट आई कैन रीड इट, बिकॉज देयर वॉज नॉट एडिक्वेट स्पेस दैट आई कैन रीड इट. मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बट स्टिल आई ट्राइड टू रीड इट बाई फोन. ऑब्वियसली मेरा कंधा दुख रहा था और बहुत जैम रोड थी, कैसे कंसंट्रेट कर पाऊँ? नहीं हो पाया कंसंट्रेट, और मैंने छोड़ दिया कि चलो भाई उधर उतर के पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत फॉर्मूलास एंड ऑल. भाई फॉर्मूलास थोड़ा बहुत मेरे को आता था, और मोस्टली जो भी आता था वो भूल जा रहे थे मैं, नया वाला तो छोड़ ही दो. सो द थिंग इज़ दैट मैं नीचे उतरा, और द थिंग इज़ दैट विच हैव सीन कि बीडी की प्लेस, मतलब बीडी का जो प्लेस है बहुत इरिटेटिंग सा प्लेस है. इट वॉज लाइक ऑन द मेन रोड. It was such a chaos. Everyone was standing there in a row, like just haphazardly. So there was no place. There was धूल मिट्टी, ठीक है, everywhere. गाड़ी जा रहा था बाजू में से. बहुत ही इरिटेटिंग सा जगह लग रहा था, बहुत ही इरिटेटिंग सा जगह. मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इट वॉज लाइक सो फ्रीकी. एक तो मेरे को याद नहीं आ रहा था कुछ फॉर्मूलाज, डेरिवेशन तो मेरे को पढ़ा ही नहीं, छोड़ो. मैं अब बस ऊपर से मेरे को पता है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल नहीं पता. फॉर्मूलाज आधा आता है, आधा भूल चुकी हो, आधा नहीं आता है. 3 चैप्टर मैंने छोड़ दिया. और सम मैंने किया था बढ़िया सम, और मैंने बहुत टफ डेरिवेशन करके आई थी. तो मेरे को लगा कि इजी डेरिवेशन नहीं आएगी, मेरे को लगा कि इजी डेरिवेशन आएगी नहीं, तो मैंने पढ़ा भी नहीं, ठीक है. तो मैंने बोला कि ओके फाइन, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. बट फिर क्या हुआ कि मैंने नीचे उतर के, सो आई वॉज ट्राइंग टू रीड इट. ओके, आई वॉज ट्राइंग टू रीड इट एंड ऑब्वियसली नहीं कर पाए, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी पढ़ने की. बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, ऑब्वियसली उतने तो नहीं हो पाए. और फिर मैंने वैल्यूज़ भूल रही थी. रेडियस का वैल्यू, एटॉमिक बोर्स मॉडल का रेडियस का वैल्यू मैं भूल जा रही थी. देन आई वॉज लाइक फॉरगेटिंग द स्पीड का वैल्यू ऑफ एटॉमिक मॉडल, एंड आई वॉज लाइक फॉरगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. मैं क्या बोलूँ, और मैंने सच ऐसा रिपीट कर रही थी, इसका वैल्यू ये है, वो है, वो. इट वॉज हेल यू नो. फिर मैंने 9:30 बजे एग्ज़ाम हॉल में घुसा, एंड द पेपर वॉज एट 10. दे आर गोइंग टू गिव द पेपर एट 10. और मैं बैठ के ऐसे इधर उधर देख रहा था कि कौन क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. ओके, जस्ट लिव ऑल दिस थिंग्स. मेरे को पहले एट 10 दे गिव मी द आंसर शीट, एंड एट 10:15 दे गिव मी द, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर. यस, आई फॉरगॉट, मैं भूल जा रही हूँ. यू नो, मैं डम हूँ भाई, सच में डम हूँ. आई डोंट नो क्या हूँ मैं डम नहीं हूँ. मेरे को ट्रॉमा अभी तक है, मतलब कम है बट अभी तक है. सो द थिंग इज दैट आई वॉज लाइक रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. मेरे को हाथ में क्वेश्चन पेपर मिली, मेरे को दिखा रही हूँ कैसे. मान लो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर
आई गॉट इन माई हैंड, ओके, इन माई हैंड, और मेरा दिल लाइक सब धड़कने से भरे जा रहा है, मैं फट गया लिटरल क्वेश्चन पेपर देख के। मैं ऐसे मैं फर्स्ट पेज देख रही, MCQ ओके मैं छोड़ दिया, ओके चलो MCQ लास्ट में देख लेंगे, कुछ कर पाऊंगी या नहीं, चलो फर्स्ट सेक्शन बी देखते हैं, ठीक है, बी देख रही हूँ, ठीक है, फट के सेकंड पेपर सेकंड पेज देख रही हूँ, थर्ड पेज देख रही हूँ, रिएक्शन बस ऐसे ही है, और फोर्थ पेज देख रही हूँ, सेक्शन ई, मेरे पीछे से हवा निकल रहा है, सामने से मतलब ऐसे लग रहा है फट रहा है, पीछे से मेरा मुंह निकल जाएगा, ऐसे मेरा हालत हो गए थे तब। फिर उसके बाद मेरा ऐसे दिमाग ख़राब हो गया कि मैं क्या करूँ, कुछ तो लिखना पड़ेगा, फेल ना कर जाऊँ मैं, बस ऐसा मेरा था। मैं स्टार्ट की सेक्शन बी से, मेरे को थोड़ा बहुत आता था, जो भी आता था वो भी देख के भूल चुकी थी मैं, सोचो भूल चुकी थी मैं, एट दैट टाइम आई फॉरगेट एवरीथिंग। मैं क्या ही कर सकती हूँ, आधा करके छोड़ दिया। हाइजीन प्रिंसिपल पूछा था, मेरे को आता ही नहीं था, मेरे को आता था बट मेरे को प्रिंसिपल ठीक से आता नहीं था, तो मैं छोड़ ही दिया। मतलब मैंने सोचा था ओके फाइन मैं लास्ट में करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट क्या क्या हुआ। तो तेज़ से मेरे को लगा कि ओके छोड़ो मैं लास्ट में करती हूँ। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि आई वॉज डूइंग स्लोली एंड स्लोली, टाइम बज रहा था तब, यू नो ऐसे मैं घड़ी में देख रही थी और टाइम भी देख रही थी, ओके फाइन इट वॉज लाइक 11:30, तो फाइन मैं कर रही थी। और फिर मैंने देखा कि सेक्शन ई पोर्शन का, तो मैंने सेक्शन ई पोर्शन में गए थे, और जाने के बाद मैंने देखा कि सेक्शन ई थोड़ा बहुत मेरे को आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आई एम सो ब्लैंक, बट मेरे को थोड़ा बहुत आता है। और मैं जो गिव रीजंस दिया था इतना फालतू दिया था, मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है, ये मेरे को पूछ रहा है कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स, देन आई हैव टू गिव रीज़न, और लाइक और मेरे को पूछ रहा है कि इट इज़ द करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू गिव द रीज़न। इतने से कन्फ्यूज़ हो गई थी उस टाइम पे, मेरे को लगा कि क्या करूँ मैं। मेरे को ऐसा हुआ कि और क्वेश्चन का और पोर्शन का मेरे को एक पार्ट का याद आता था, दूसरा पोर्शन का मेरे को और पार्ट का याद आता, ऐसा मेरा सिचुएशन हो गया था। तो मेरे को ऐसा लगा ठीक है चलो भाई टाइम बज रहा है 12:30 बज गए, एंड मैं लाइक व्हाट द फक भाई 12:30 बज गए कैसे, नहीं चलो भाई 1 घंटा फिर भी बाकी है, तो आई वॉज लाइक डूइंग इट। करते करते सेक्शन ई मैंने कंप्लीट किया, वो आई गेस तब 1 मैंने कुछ करके 1 बजे एक बजे, मतलब मैं सेक्शन ई में भी थोड़ा थोड़ा मैं छोड़ा है, मैं सोच कर रही थी धीरे धीरे, और सडनली मैंने वॉच में देखा एंड लाइक इट वॉज 1 o'clock। मेरा फट गया, मेरा पूरा सेक्शन ए बाकी था, मेरा पूरा सेक्शन डी बाकी था, फिर मेरे को सेक्शन बी और सी का मेरे को थोड़ा थोड़ा बाकी था। मैं क्या करूँ, और ऊपर से मेरे को आता भी नहीं कि मैं जैसे डायरेक्ट फट करके लिख दूँ। फट के 4 हो गया। मैं सेक्शन ए फर्स्ट का मेरे को सोचा कि चलो ठीक है 15 मिनट सेक्शन ए कर लेंगे, 5 मिनट सेक्शन डी कर लेंगे। भाई आधा घंटा मैं सेक्शन ए कर रही थी, 20 मिनट्स लग गया, ऐसे टाइम पता नहीं कैसे इतने जल्दी बीत रहे। 5 मिनट बाकी था, मैंने सेक्शन ई किया एकदम जल्दी फटाफट, मेरे को पता नहीं कौन सा कैंसर, मैंने बस तुक्का लगा के लिख दिया। फिर मेरे को जितना आता था वो भी मैं भूल चुकी थी। भाई ऑब्वियसली इतना कम टाइम है, मैं क्या करूँ, थोड़ा सोच के कि लिखने भी बैठो ना फिर भी नहीं होगा, टाइम तो ख़त्म ही हो जाएगा। कुछ भी करके मैंने टिक दी थी। और फिर सेक्शन बी और सी, सेक्शन बी में करने बैठा, मतलब 3 क्वेश्चन बाकी था बी और सी में, सी क्या है 3 क्वेश्चन बाकी था, मैं बैठा करने, मैं लास्ट का क्वेश्चन मैंने करने बैठा, बेंच था 5 क्या भाई 2 मिनट बाकी था, किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन था, एंड आई विल लाइक किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन था कि यू हैव टू मेंशन द किरचॉफ लॉज एज वेल एज यू हैव टू राइट अबाउट द
लाइक एज वेल एज इट वाज अ क्वेश्चन, इट वाज अ फुल क्वेश्चन। किर्चॉफ लॉ से करना पड़ेगा। टाइम है बेंचो 2 मिनट, मैं कैसे कंप्लीट करूँ? लॉ लिखा मतलब तो वो थोड़ा सा कुछ लिख दिया मैंने, और जस्ट क्वेश्चन था। मैं सोच भी नहीं पाऊंगी मैं क्या किया। हक दिया किर्चॉफ लॉ लगाया नहीं मैंने। ऑब्वियसली टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो किर्चॉफ लॉ नहीं होगा शायद। मैंने सोचा कि चलो भाई बैटरी से होगा, मैं जल्दी कर देती हूँ। ऑब्वियसली गलत तो है ही, क्योंकि मेरे को पता था वो किर्चॉफ लॉ से है, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं भाई चलो कुछ अलग होगा। मेरे को ऑब्वियसली तब 2 मिनट 1 मिनट बाकी था भाई, क्या कर सकती हूँ मैं, क्या ही कर सकती हूँ। नहीं हुआ, गलत करके आ गई। एग्ज़ाम हॉल से मैं निकल रही हूँ, हाथ एकदम पूरा सुन। मैं लोगों से आंसर पूछ रही हूँ MCQ का, बस चाहती हूँ MCQ सब सही हो जाए, मैं एकदम पास कर जाऊँ। MCQ बेंचो बस MCQ से बस 6 करेक्ट हुआ, और उधर वो केस बेस्ड स्टडी से 3 करेक्ट हुआ।